یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو جو ہمارا چینل یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور زیادہ آپ اس کلام کو اور زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ خدا کا کلام تو ہے ہی سارے کا سارا خاص، اس میں سے کوئی بھی بات عام نہیں، یہ ہر صبح ہمارے لیے تازہ ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاللیلویا نہیں کہتے، نہ خوشی پر، نہ غم پر، نہ کلام سناتے ہوئے، نہ عبادت میں، بلکہ ان کو اس لفظ سے سخت نفرت ہے، سخت کراہیت ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ہاللیلویا جو ہے اس کا مطلب ہے خدا کی حمد کرنا، خدا کی تعریف کرنا۔ نعرے لگانے سے لوگ شرماتے ہیں، اس لفظ کو کہنے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرماتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے آج خدا کے زندہ کلام میں سے، اور آج ہم پہلی 10 آیات کا مطالعہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست باتیں ہیں۔ یہ میسج صبح میں نے پہلی میٹنگ میں بھی سنایا، خدا کا شکر ہے پہلی عبادت میں ہمارا فل چرچ جو ہے بھرا ہوا تھا، بہت سارے لوگ یہاں پر پہلی عبادت میں بھی موجود تھے اور اب آپ بھی موجود ہیں، ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہ سب سے بزرگ خادم یوحنا عارف جو پتمس کے جزیرہ میں ہے، قید میں ہے، بزرگ ہے، لیکن ہر وقت روح میں رہتا ہے۔ لکھا ہے جو کوئی شخص روح میں رہتا ہے، خدا کی صحبت میں رہتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، اور کام کی کثرت کے باعث خواب دیکھا جاتا ہے، اور یہ شخص اتنا خدا میں محب ہے، اتنا مگن ہے، اتنا گمسم ہے، اتنا خدا میں کھویا ہوا ہے کہ یہ آسمان پر بھی چلے جاتا ہے، رویا میں یسوع مسیح کو یہ ڈائریکٹ بھی دیکھتا ہے، فرشتے کے ساتھ یہ ڈائریکٹ بھی کلام کرتا ہے، اور اس نے اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے خداوند کی حضوری میں گزارا ہے اور خدا کے کلام کو لکھا ہے، اور اس نے ماضی کے تعلق سے، حال کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں یہ تحریری طور پر دیا ہے اور مہر کر دی ہے آخری باب کی آخری آیاتوں میں کہ نہ کوئی اس میں سے بڑھائے، نہ کوئی اس میں سے گھٹائے، جو کوئی اس میں سے بڑھائے گا، گھٹائے گا، اس پر آفتیں نازل ہوں گی۔ یہاں پر وہ کہتا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت دیکھی۔ یہ بڑی جماعت کون ہے؟ یہ پوری دنیا کی کلیسیا ہے، یہ پوری دنیا کے ایماندار ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ وہ ہیں جو جان دینے تک وفادار رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، یہ وہ ہیں جو دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں، تمام حالات میں خدا کے ساتھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے زمین پر رہ کر اپنی زندگیوں کو خوف میں گزارا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو زمین پر گزارا ہے، یہ وہ ہے جو زمین پر نعرے لگانے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو زمین پر عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار رہنے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو پاک کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو بڑے کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں
जो खुदा के जलाल के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियों को जमीन पर गुजारा है और आखिरी दम तक मसीह का इनकार नहीं किया। लिखा फिर मैंने उनको भी देखा जिनके सर गोया कलाम सुनाने की वजह से कलम किए गए थे, उनको भी मैंने वहां पर देखा। कहता है इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया। क्या कहा जी कलीसिया ने? मैं पंजाबी च दसना होना है कि जड़ा इत्थे भुखा लाहौर भी भुखा, जिसने यहां पर जमीन पर हालेलुया नहीं कहना, जिसने जमीन पर इबादत नहीं करनी। कई लोगों को पता ही नहीं है कि खुदा ने हमें क्यों पैदा किया है। कई लोग सिर्फ यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, कई लोग जो है वो यहां पर जमीनी जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं, दुनिया और दुनिया की फिक्रों तरद्दुत में पड़े हुए हैं। कईयों को पता ही नहीं है कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, हमारा जमीन पर आने का मकसद क्या है। तो आप जानते हैं कलाम कहता है यशायाह की किताब 43वें बाब की 21वें आयत में लिखा है मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। तो खुदा के जो लोग हैं वो जमीन पर भी खुदा की हम्द करते हैं और हालेलुया के नारे लगाते हैं। तो आसमान पर जब कलीसिया जा चुकी थी तो फिर कलीसिया ने वहां पर जाकर क्या किया? मुस्तकबिल के ताल्लुक से ये बात है, कलीसिया ने जाकर आसमान पर पहला काम क्या किया जी? हालेलुया कहा, जिसका मतलब है खुदा की तारीफ हो। बहुत से लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हमें जी गम की हालत में हालेलुया नहीं कहना चाहिए, हमें गम की हालत में खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए, तो और क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए खुदा तेन सहेगा रबासी, और क्या करना चाहिए? मैं आपको यह बता देना चाहता हूं जब तक आप दुख में भी ये नहीं कहेंगे ना खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने दिया तूने लिया तेरा है नाम, आपको तसल्ली मिलने वाली नहीं है। पर ये कह कौन सकता है? ये वो कह सकता है जिसके अंदर जिगरा है, जिसके अंदर दिल है, जो खुदा के लोग हैं यूब की तरह, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जो मुकाशवात को जानते हैं, जो गहरी सच्चाइयों को जानते हैं, जो खुदा की मर्जी को जानते हैं, जो खुदा के इंतजाम को जानते हैं। ये वही लोग कह सकते हैं, आम बंदे के बस की ये बात नहीं है। आम बंदा तो यही कहेगा इनके रोने को बरकत दे, कि ये ज्यादा रोने, यही कहेगा। लेकिन कलाम हमें कहता है इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। लिखा है इन बातों के बाद मैंने गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया। कैसे उन्होंने कहा है? बुलंद आवाज से, जैसे मैं बुलंद आवाज से बोल रहा हूं, जैसे मैं बुलंद आवाज से नारे लगाता हूं जमीन पर, आपको भी बुलंद आवाज से नारे लगाने चाहिए कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो फिर हमारी आवाज बुलंद हो, और जब नारे लगाने की बात हो तो ऐसी पहले काले तोते जाइए ना। इसलिए हमारी आवाज कौन सी होनी चाहिए? बुलंद। ए अहले जमीन, सब खुदावंद का दूर खुशी का, तो नारा जो है वो बुलंद होना चाहिए कि डाउन होना चाहिए? अप होना चाहिए कि डाउन होना चाहिए? अप होना चाहिए। नरसिंह की मानद आवाज होनी चाहिए। आपको पता है जब नरसिंगा बजाया जाता था तो उसकी आवाज सारे लोगों को सुनती थी और लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। नारा हमेशा जोर से लगाया जाता है, इसलिए ये नारा है बुलंद आवाज से। लेकिन कौन बुलंद आवाज से नारा लगाएंगे? जो यहां पर बुलंद आवाज से नारा लगाते हैं। हालेलुया। कौन वहां पर बुलंद आवाज से गाएंगे? जो यहां पर बुलंद आवाज से गाते हैं वो वहां पर भी बुलंद आवाज से खुदावंद के लिए गाएंगे। और सुने जी तारीफ क्या है कि निजात, यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम खोए मुंह को ढूंढने और गुनाहगारों को निजात देने के लिए है कि निजात और जलाल, इज्जत और शोहरत और कुदरत हमारे खुदा ही की है। जैसे खुदा के फरिश्ते बगैर आराम किए आसमान पर हर वक्त ये कहते हैं कदूस कदूस कदूस, वैसे ही मैं और आप बगैर आराम किए, चूंकि जलाली बदन होंगे, यहां पर आप थोड़ी देर बैठे तो थक जाते हैं, लेकिन वहां पर आप थकेंगे नहीं, क्योंकि जलाली बदन होंगे, आप फरिश्तों की मानद होंगे, आप यीशु मसीह की तरह होंगे, आप खुदा की तरह होंगे, आप
تھکیں گے نہیں. آپ کو سب کچھ وہاں پر ملنے والا ہے. سونے کی سڑکیں ہیں, دودھ اور شہد کی ندیاں ہیں, ہر قسم کا فروٹ ہے, ہر قسم کی ہریالی ہے. وہاں پر بھوک نہیں ہے, دھوپ نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, آنسو نہیں ہے. وہاں پر سوئیں گے بھی نہیں آپ جیسے خدا نہیں سوتا. وہاں پر آپ ہمیشہ جیسے خدا کے فرشتے بغیر آرام کیے خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں, ہم بھی آسمان پر جا کر یہی کام کریں گے. اور بائبل کہتی ہے دنیا کی تمام چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. یہاں پر کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. سب کچھ بدلنے والا ہے, سب کچھ نیا ہونے والا ہے. اس لیے ہم آسمانی ہیں, ہم آسمان پر جانے والے ہیں. اور یہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور کلیسیا جب اٹھائی جائے گی, آسمان پر چلی جائے گی, آخری عدالت کے بعد پھر کلیسیا وہاں پر خدا کی حضوری میں رہے گی. خدا کا تخت ہوگا, برے کا تخت ہوگا, خدا کا پاک روح ہوگا, 24 بزرگ ہوں گے, چاروں جاندار وہاں پر ہوں گے اور ساری کلیسیا وہاں پر موجود ہوگی. اور کلیسیا جو ہے بغیر آرام کیے ہالےلویا کے نعرے لگائے گی اور خدا کی تمجید اور اس کی تعریف کرے گی. آمین, ہالےلویا. سو لکھا ہے جی کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں, وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا. اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے, اس کے سارے فیصلے درست ہیں جو وہ میرے اور آپ کے لیے کرتا ہے. اور لکھا ہے جی کیونکہ اس کے فیصلے درست اور راست ہیں, اور لکھا ہے اس لیے اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا. یہاں وہاں پر انصاف کیا گیا, وہاں پر وہ ہمارا بدلہ لینے والا ہے. یہاں پر وہ کسبی ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جس نے لوگوں سے حرام کاری کروائی, بت پرستی کروائی, زنا کاری کروائی. لوگ بتوں کے سامنے جو لوگ جھکتے ہیں ان کلیسیاؤں کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم سب مل کر مسیح کی دلہن ہے. ہالےلویا, مسیح کی دلہن ہے. اور اگر ہم کلام لکھا غیر بتوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا گام بڑھ جائے گا. اگر ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اسٹیچو کے سامنے, کسی قبر کے سامنے, کسی پیر کے سامنے, کسی فقیر کے سامنے, کسی دربار کے سامنے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم زناکاری کا گناہ کر رہے ہیں, ہم حرام کاری کا گناہ کر رہے ہیں. اس لیے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کہ میں واحد خدا ہوں, میرے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا, صرف میں خدا ہوں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, صرف ایک نام ہے جو یسوع نام ہے, اور اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. آگے لکھا ہے پھر دوسری بار انہوں نے ہالےلویا کہا. ایک ہی دفعہ نہیں کہا بلکہ دوسری بار پھر انہوں نے کیا کیا, ہالےلویا کہا جب ان کا انصاف کیا گیا. یہاں پر جب زیادتی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو لوگ نیٹ پر چھوڑتے ہیں ہمارا انصاف کیا جائے, ہمیں انصاف دیا جائے. لوگ انصاف پکارتے ہیں لیکن انصاف ان کو ملتا نہیں. لیکن ایک ہے جو عادل اور منصف ہے جو ہمیں انصاف دے گا, جس نے کہا بدلہ لینا میرا کام ہے اور انتقام میں ہی لوں گا, تم نے نہیں لینا بلکہ تم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے. جب تم دشمنوں کے لیے دعا کرو گے تو خدا ان کے سر پر آگ کے گالوں کا ڈھیر لگا دے گا. پھر میں نے دوسری بار انہوں نے کہا ہالےلویا, اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساتھ ساتھ اور بھی حوالے آپ کو کوٹ کروں, چونکہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں, اگر ان سب کو اسٹڈی کیا جائے تو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کہتا ہے گنہ گاروں کی ہڈیوں کا دھواں سدا اٹھتا رہے گا اور ان کا کیڑا کبھی ختم نہیں ہوگا. جو لوگ ہر روز اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں وہ کبھی بھی وہاں پر جا نہیں پائیں گے. سو آگے لکھا ہے اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا. پروسکونیو لفظ جو استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں اونڈے منہ گر جانا, اپنا ماتھا اپنا ناک نیچے لگانا اور اپنے آپ کو سلنڈر کرنا, اپنے آپ کو خالی کرنا, اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع کرنا, اپنی خودی کا انکار کرنا. انہوں نے گر کر اس کو سجدہ کیا. کیا ہم جب چرچ میں آتے ہیں ہم خدا کو آ کر سجدہ کرتے ہیں؟ کیا جب ہم اپنے گھر میں دعا کرتے ہیں کیا ہم نے کوئی ایسا کمرہ مخصوص کیا
जिस पे जाकर हम जब भी जाएं तो सिजदा करें? कैसा हमने किया? हम नहीं करते, हम शर्माते हैं, हम चर्च में आकर भी शर्माते हैं। कह दें तो फिर करते हैं, अदरवाइज हम खुद अपनी मर्जी से नहीं करते। तो यहां पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आसमान पर हमने सिजदा ही करना है जाकर, तो यहां पर भी सिजदा करें। खुदा ने इसलिए पहला हुक्म दिया था, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। खुदा ने जमीन पर हुक्म दिया है, लेकिन यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि मुस्तकबिल में मैंने देखा कि कलीसिया जो है वो खुदावंद के सामने झुकी है और उसने उनको क्या किया है? सिजदा किया है। यहां पर प्रैक्टिस करें सिजदे की, करेंगे सिजदा, खाएंगे। लोग सिजदा कर करके खा रहे हैं, हम भूखे पड़ रहे हैं। ये वजह तो है ना कोई सिजदा नहीं हम करते। भावे 100 झूठ मारे दूसरे लोग, पर सिजदा करते हैं हम तो करते नहीं है सिजदा। हम तो अपनी खुदी का इनकार करते नहीं, हम तो अपनी अकड़ को पीछे करते नहीं है, हम तो अपने आप को पानी की तरह ढेरते नहीं है खुदा की हुजूरी में। इसलिए फिर हमारी जरूरियात भी जो है वो ठीक तौर से पूरी नहीं होती। इसलिए लिखा है, और खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। कह सकते आप? तीसरी दफा आ गया है, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि तीसरी दफा कहा। ਇਹਦਾ मतलब उथे कम हालेलुया कहने दा ये ਇੱਥੇ हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे लगते नहीं रुपये। तो हालेलुया यहां पर भी कहें, जेड़ा करदा तराज उन्हें करन दो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग हालेलुया नहीं कहेंगे वो आसमान पर नहीं जा सकते, ना ही आसमान पर जाकर हालेलुया कहेंगे, क्योंकि यहां नहीं ना कहते। इसका मतलब है खुदा की तारीफ करना। तो इसलिए लिखा है हालेलुया, और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वालों बंदो और बंदियों, ऐ खुदा के बंदो और बंदियों, ईमानदार लोगों, छोटे खा बड़े, खा आप छोटे हैं, खा आप बड़े हैं। गौर से जरा सुनिएगा, तुम सब खुदावंद की हम्द करो। सब ज़बूर नवीस में लिखा है, ऐ बुड्ढो, ऐ जवानों, ऐ कुंवारियों, ऐ बच्चों, तुम सब खुदावंद अपने खुदा की हम्द करो। हुक्म दिया गया है, क्योंकि खुदा ने हमें हम्द करने के लिए पैदा किया है जमीन पर। लेकिन हम तो बहुत सारे लोग हैं जो संडे को भी हम्द करने के लिए नहीं आते, और मैं देखता हूं कि बहुत से लोग उस वक्त आते हैं जब हम्दो से ताज खत्म हो जाती है, और उस वक्त हम चर्च में आते हैं। सुबह मैंने पहली मीटिंग में भी ये बात बताई, अगले संडे आप सब अगर दूसरी बात में आए तो पूरे 10 बजे यहां पर हो आप, और आते ही आपने सिजदा करना है। ये खुदा की तरफ से आपको ऑर्डर है। अगर पहली इबादत में तो पूरे 7 बजे आए, आकर पहले खुदा को सिजदा करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। लेट ना आए, पहले आए, सिजदा करें, पूरी हमदोस्ताश करें, फिर उसके बाद आप कलाम सुने, आप बरकत लेकर यहां से जाएंगे। वैसे भी हम हर रोज यहां पर जो 10 बजे हम मीटिंग करते हैं, हम आपके लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं, हम आपकी बेदारी की दुआ कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ मिल सकते। काफी सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं सुबह 10 से 11 तक यहां पर दुआ करने के लिए। तो आपको भी मैं ये दावा देना चाहता हूं कि आप भी अपना टाइम निकालें खुदा के लिए। खुदा ने आपको ये टाइम दिया है, अगर खुदा आपको टाइम ना दे तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप टाइम निकालें, खुदा की जुड़ी में आए, हमारे साथ मिलकर सिजदा करें। लिखा तुम सब खुदावंद की क्या करो? हम्द करो, क्योंकि उसने हमें हम्द करने के लिए पैदा किया है। और गौर से सुनिएगा, हम्द के ताल्लुक से यह हुक्म है कि तुम करो, सुनना नहीं है। टीवी चैनल से गीत सुनना, ज़बूर सुनना अच्छी बात है, आप उनको लिख सकते हैं जो आपको गीत नहीं आते, नए नए गीत। लेकिन कलाम हमें कहता है हम्द करो, दुआ भी करो, इबादत भी करो, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। हम तो आपने करनी है, आप करेंगे तो बरकत आएगी, नहीं करेंगे तो बरकत नहीं आएगी। लिखा है फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज, एक और फिर उसने जिक्र कर दिया है बड़ी जमात का। ठीक है, ये बड़ी जमात कलीसिया को कहा गया है कि पूरी दुनिया के जो जितने भी ईमानदार लोग हैं, जितने भी राष्ट्रवास हैं, उन सब को कहा गया है जो निजात याफ्ता है, जो पाक किए हुए हैं, जो जुदा किए हुए हैं, जो अलग किए हुए हैं, जो मुकद्दस किए हुए हैं, जिनके जामे भरे के खून से धुल चुके हैं और वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे।
लिखा फिर मैंने एक और बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज और आवाज सुनी। और चौथी दफा आ गया लफ्ज, जिनके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? ये न्यूना ची क्या ना नीवा क्या ना सारी कलीसिया मिलकर कहे हालेलुया। सारी कलीसिया ने मिलकर बुलंद आवाज से चौथी दफा हालेलुया कह दिया जी। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉੱਥੇ जाके ये वही काम होना है। मैं तुम बार बार ये गल दस रहा कि यहाँ पर दुनिया के सब कामों का खात्मा जल्द होने वाला है। आसमान पर जाकर एक ही काम है, अच्छा लिबास आपने पहना होगा, आगे जिक्र भी आएगा। अच्छा लिबास पहना होगा आपने, वाइट लिबास आपने पहना होगा और आप फरिश्तों की मानत होंगे और सिर्फ आप खुदा की हम दोस्ताश करेंगे, गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे और हालेलुया के सिर्फ नारे लगेंगे, वहां पर आवाजें गूंजती रहेंगी। हालेलुया, सिर्फ यही काम होगा। सारे काम खत्म होने वाले हैं, इसलिए उन कामों को छोड़ें, ये काम करें, ये मेन काम है जो सारी जिंदगी हमने करना है, हमेशा तक रहेगा नाम सदाती का सीधा है। तो हमने वहां पर हमेशा यही काम करना है। सो आगे लिखा है इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। ये अपनी बादशाही की बात है। जमीन पर भी 1000 साल बादशाह होगी, यीशु मसीह करेगा, मैं करूंगा, आप करेंगे। हम काशवा की किताब के 20वें बाब को आगे पढ़ सकते हैं। फिर तख्त लग गए, लोग उन पर बैठ गए, 1000 साल बादशाही वो करते रहे जमीन पर, लेकिन उसके बाद आखिरी दारत, उसके बाद बेटा अपने आप को बाप के सुपुर्द कर देगा। फिर उसके बाद अब्दी बादशाह, नया आसमान, नई जमीन और बड़े लहू से धुली एक बड़ी भीड़, बड़ी जमात वहां पर होगी और सिर्फ खुदावंद की हमदो सिताइश करेगी और बादशाही भी करेगी, जमीन पर भी आसमान पर भी बादशाही। और क्या है, आओ हम खुशी करें। क्या करें? खुशी करें। कलीसिया खुशी मना रही है आसमान पर, लेकिन दाऊद जमीन पर भी कलीसिया को कुछ कह रहा है। ज़बूर 100 में आता ना, ऐ अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेरे हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। मैं खुश है तो मैनू कितने चलिए कोई भैन भरा करे हो कितने चलिए तो तुम की होना चाहिए? खुश। ठीक है पास्टर साहब, हम आएंगे खुशी के साथ, ये नहीं कि पूरे 12 बज गए। खुशी के साथ, खुदा खुशी के साथ देने वालों को खुशी के साथ चर्च में आना है, खुशी से हदिया देना है, खुशी से गीत गाने हैं। अच्छा जनाब गीत गाते साढ़े मुंह 13 बजे होते हैं। खुशी के साथ खुदावंद की प्रोसेस करनी है। एहसान नहीं है खुदा पर, खुदा ने हमें प्रोसेस के लिए पैदा किया है, खुदा ने हमें हम के लिए पैदा किया है। तेरियां सिफता गावन ली इंसान भी थोड़े ने, इसलिए खुशी के साथ खुदावंद की क्या करनी है? हमद करनी। हमें खुदा ने आवाज भी दी है, गला भी दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन हम खुशी के साथ हमद करते नहीं हैं। हर वक्त हमद करनी है। हम के ताल्लुक से लिखा है आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें दिल से खुदावंद के लिए हर वक्त गाते और बजाते रहा करो। हर वक्त हमें खुदा की हमद करनी है। लिखा है और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। शादी का सुनाज है ना, फलाने कज़न की शादी है तो 2 महीने पहले तैयारियां हैं। मैं आज केड़ा सूट पाना है, मैं केड़ी जुत्ती पानी है, केड़ा लहंगा पाना है, केड़ा टू पीस पाना है, पहले ही हम तैयारियां करते हैं यहां पर जो शादी अटेंड करने के लिए। और एक और बात आपको बताऊं, यीशु मसीह के दौर में जब कोई बंदा शादी में जाता था, स्पेशल शादी वाला लिबास होता था। जो वो शादी वाला लिबास पहनता था, बाहर 2 बंदे खड़े होते थे जिनके पास वो लिबास होता था और जिनको इनवाइट किया जाता था, दावत दी जाती थी, पहले वो लिबास पहनते
ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ था, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ अंदर आ, तू इन्हें शादी वाला लिबास ही नहीं पाया, इसको पकड़ो और बाहर निकाल दो। अगर आज मैं और आप शादी वाला लिबास नहीं पहनेंगे, मैं रूहानी बात कर रहा हूं, तो फिर आपको भी वहां से बादशाही से बाहर निकाला जाएगा। आगे जिक्र भी है, बड़े की शादी आ पहुंची है, खुशी की बात है, बड़ा आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए लिखा है खुशी करने की जरूरत है, नहायत शादमान होने की जरूरत है। कई दफा लोग क़यामत के लफ्ज़ से बड़ा डरते हैं, कोई क़यामत होने वाली है, घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं, क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। तो जब क़यामत आएगी तो हमारे अज़ीज़ जो पहले हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, और फिर बाकी हम जो जिंदा होंगे हम भी हवा में उठकर यीशु मसीह का। तो क़यामत हमारे लिए खुशी है कि परेशानी है? खुशी है। आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज रात को करवट भी बदले तो कहें आ यीशु जी आप दुल्हन को ले लें? मैं तो कहता हूं जब भी मैं रात को सोया हुआ होता हूं, करवट बदलता हूं, मुझे जाग आ जाती है तो मैं कहता हूं आ यीशु जी आप, क्या क्या जुबानों में मैं दुआ करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो इतना तैयार हैं, जो कहे कि अगर आज ही यीशु आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जा सकते हैं, आज ही मौत आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहां पर लिखा है जी, बड़े की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया कि बिगाड़ लिया है। बाल है तो चल रहे जिम्मे कुटी होंगी बाल च है। सो अपने आप को उसने क्या कर लिया? ये रूहानी तैयारी की बात है भाई। रूहानी तौर पर ईमान ले आए, वो तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पाकरू पा लिया, पाकरू का लिबास पहन लिया है, निजात का लिबास पहन लिया है, रास्तबाजी का लिबास उन्होंने पहन लिया है, पुरानी इंसानियत को उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है। उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपने किया कि नहीं? कितने लोग हैं जो कहते आज ही यीशु आ जाए हम तैयार हैं? दिखाएं, कईयां दी नीयत नहीं भी ठीक है, सारे कहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ अपना फायदा सोचन दे कि यीशु आ जाए ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ नहीं जा रहे वो ਇੱਥੇ रह जाए। ये दुआ करें कि खुदावंद सारे लोगों को तैयार करे, सारी दुनिया को तैयार करे, ताकि यीशु जल्द आए और हमें आसमान पर ले जाए। लिखा जी, उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा, महंगा कपड़ा, खास किस्म का कपड़ा उसको पहनने का इख्तियार दिया गया, पहनने का इख्तियार दिया गया, अथॉरिटी दी गई, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फख्रियों और फरिश्तों से बढ़कर ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगे। पहले निजात फिर रास्तबाजी के काम, हमारा मजहब ये हमें बताता है। दूसरे मजहब ये कहते हैं कि पहले निजात, पहले रास्तबाजी, ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक अमाल। लेकिन हमारा मजहब कहता है कि पहले हमने निजात पानी है, फिर हमने नेक अमाल भी करने हैं, नेकियां कमानी है। सामरी जो बंदा था जिसने नेकी कमाई थी, एक बंदे को लोग मार कर छोड़ गए थे, तो उसने अपने गधे पर लादा और वो उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसने उसकी तीमारदारी की। आज भी उसका जिक्र है कि नहीं? नेक सामरी, नेक शख्स, उसके ताल्लुक से उसको पुकारा जाता है, और जब तक दुनिया कायम है बाइबल में उसके ताल्लुक से लिखा हुआ है, और खातम बताते रहेंगे कि वो नेक आदमी था। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि मुबारक है वो, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। जब शादी को करता है तो वो अपने अजीजों को बुलाते हैं, या जिनसे कुछ लेना देना हो उनको बुलाते हैं, या जिनके साथ कोई ताल्लुक हो, रिश्ता हो, नाता हो, हम उनको बुलाते हैं। जो खास हमारे करीबी होते हैं हम उनको बुलाते हैं। तो सफनिया की किताब में लिखा है, पहले तीसरे बाब की पहली आयत में, तीसरे बाब की 12वीं आयत में, कि वो चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करेगा। कौन? यीशु मसीह। कौन है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता रहा है, जो मेरे कलाम की पैरवी करता रहा है।
लिखा है वो लोग मुबारक हैं जो बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए। जब बड़ा आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो वो लोग लकी हैं, मुबारक हैं जिनको यीशु आवाज देगा कि बाहर निकलो कब्रों में से। समंदर अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा, जमीन अपने अंदर के मुर्दों को दे देगी, उनको इनवाइट किया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी, निकलो। और कलाम कहता है जितने मुर्दे मसीह की आवाज सुनेंगे वो निकल आएंगे गैर फानी हालत में और हवा में उड़कर यीशु मसीह का। इसलिए लिखा वो मुबारक हैं जिनको बड़े की शादी की ज़ियाफत में बुलाया गया है, दावत दी गई है। आप और मैं मुबारक है, उसने हमें बुलाया है दुनिया में से, उसने हमें चुना है। और लिखा है कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुनकर अलग किया है ताकि तुम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। सो लिखा है फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं। कौन सी बातें? सच्ची बातें जो होती है वो पूरी होती है कि नहीं? अगर कोई सच्ची नबूवत कर दे तो वो पूरी होती है कि नहीं? ते जे कोई अपने को कर दे, अपने नंबर बनाने ली, वो सारी जिंदगी नहीं पूरी होती। बंदा इंतजार कर करके खप जाता, मेरे लिए नबूवत हुई सी, पता नहीं मेरे लिए पूरी क्यों नहीं होनी। वजह क्या है? कई खादम झूठी नबूवतें कर देते। मैं आज तक कई जनों नबूवत नहीं की, मैं कभी शेखी नहीं मारी कि मैं नबूवत कर, कभी नहीं। ये नबूवत का कलाम मैं सुनाता हूँ क्योंकि जब मुझे खुदा ने नहीं नबूवत दी तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। आज बहुत से लोग नंबर बनाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, नबूवतें करते हैं, झूठी नबूवतें, फिर बाद में वो पूरी नहीं होती, इब्लीस उनको बरगलाता है। तो इसलिए कभी भी हमने ऐसी बात का यकीन नहीं करना। लिखा है आसमान जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह से निकली बातें, ये बातें लिख दे सच्ची हैं, ये बरहक हैं, ये पूरी होगी, इनको कोई झुठला, कोई एक शोशा भी, एक नुक्ता भी इनमें से मिटने वाला नहीं है, घटने